ادابرز ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ خواتین کو مستحکم بنانے کے لیے چلائی جا رہی اسکیمات کا نیشنل ویمن کمیشن کی چیئرمین وجے راہٹکر نے لیا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر کیا اطمینان کا اظہار۔ اورنگ آباد پردیش ڈیولپمنٹ اسٹیچری بورڈ کے تحت کی جا رہی راستوں کی مارکنگ کے لیے شہریان دے تعاون۔ دھوکہ دہی اور نقصان سے بچنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ سے NOC لے کر ہی تعمیری کام کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس کی جانب سے جاری کی گئی گائیڈ لائن۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی رہنمائی میں چلائے جا رہے اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول پروگرام کے سامنے آنے لگے مثبت نتائج۔ میونسپل طلباء نے حاصل کی اسکالرشپ امتحانات میں شاندار کامیابی۔ سال رواں بھی اسکالرشپ امتحان کی تیاری کے لیے چلایا جائے گا خصوصی پروگرام۔ اور ہر سنیچر کو جل شری پر گھومنے کا میونسپل طلباء کو فراہم کیا جا رہا ہے موقع۔ میونسپل طلباء میں UPSC امتحان سے دلچسپی پیدا کرنے میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو ملی بڑی کامیابی۔ اسٹڈی پر خصوصی توجہ دے کر اعلیٰ آفیسر بننے کا طلباء بننے لگے ہیں خواب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیشنل ویمنس کمیشن کی چیئرمین وجیا راہٹکر کی سربراہی میں ایک میٹنگ ضلع کلکٹر آفس میں منعقد کی گئی، جس میں خواتین کو مستحکم بنانے کے لیے چلائی جا رہی اسکیمات کا جائزہ لینے کے بعد چیئرمین نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ جائزہ میٹنگ کے آغاز سے پہلے وجے راہٹکر نے ضلع کلکٹر آفس میں خواب تیرا میرا کے عنوان پر شادی سے قبل بات چیت کے لیے قائم کیے گئے سنواد کیندر کو وزٹ دی۔ اسی طرح خواتین کی بہبود کے لیے چلائی جا رہی مختلف اسکیمات کا انہوں نے جائزہ لیا۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے چلائے جانے والے مختلف پروگرام جیسے کہ واچن کٹا، ہرکنی کلیکشن اور دیگر سرگرمیوں سے متعلق انہیں معلومات فراہم کی۔ تمام اسکیمات کا جائزہ لینے کے بعد وجیا راہٹکر نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ اس موقع پر نیشنل ویمنس کمیشن کی ڈپٹی سیکریٹری ڈاکٹر شیوانی ڈے، ڈپٹی کلکٹر سنگیتا راٹھوڑ، ڈاکٹر سچیتا شندے، معاون کے مینیجر جتیندر سنگھ راٹھوڑ اور دیگر موجود تھے۔ چھاوا تنظیم کے عہدیدار وجے گھاٹگے پاٹل پر ہوئے حملے کی مذمت میں آج کرانتی چوک علاقے میں چھاوا تنظیم کی جانب سے زوردار احتجاج کیا گیا۔ واضح ہے کہ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر سنیل تٹکڑے سے ملاقات کے لیے چھاوا تنظیم کے ذمہ داران نے لاتور پہنچ کر انہیں ایک میمورنڈم دینے کی کوشش کی، جس کے ذریعے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسمبلی سیشن کے دوران موبائل پر رمی کھیلنے والے ریاستی وزیر کوکاٹے کو معطل کیا جائے، جس پر NCP کے ورکرز کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ لہٰذا اس واقعے کی مذمت میں کرانتی چوک علاقے میں زوردار احتجاج کیا گیا اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے بینر کو پھاڑتے ہوئے اس پر جوتے برسائے گئے۔ राष्ट्रवादीचे युवक प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण आणि त्याच्या गुंडांनी जो अमानुष हल्ला केला, या हल्ल्याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। त्याचबरोबर या सूरज चव्हाणवर 307 गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि तो जेलमध्ये गेला पाहिजे, ही आज आमची सगळी तमाम मराठा संघटनेची मागणी आहे। त्याचबरोबर अजितदादांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून या सूरज चव्हाणची हकालपट्टी केली पाहिजे, अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। प्राध्यापक माणिकराव शिंदे पाटील, मराठा मावळ संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष। आजच्या छावा संघटनेच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आमची सर्वप्रथम प्रमुख मागणी अशी आहे, जो पिसाळलेला कुत्रा सूरज चव्हाण यांनी आमच्या विजय गाडगे पाटलावर जो हल्ला केला, त्यांना मारहाण केली, त्या मारहाणीबद्दल त्याच्यावर संघटित गुन्हेगारी मकोका अशा गंभीर स्वरूपाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा। अजित पवारांनी ज्या कृषी मंत्र्याचं पहिल्यापासून धोरण शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये राहिलेलं आहे, अशा शेतकरी विरोधी कृषी मंत्री कोकाटेची हकालपट्टी करावी, त्यांना मंत्रिपदातून हाकलून द्यावं, ही दुसरी मागणी। अशा आमच्या मागण्या आहेत। या मागण्या तात्काळ जर मंजूर त्यांनी मागण्या मान्य केल्या नाही तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन आणि ज्या सूरज चव्हाणी ज्या हाताने विजय घाटगे मारलं ते हात तोडल्याशिवाय छावा शांत बसणार नाही। साल 2024 को रेलवे स्टेशन इलाके में पाइपलाइन फूट जाने के सबब जिन शहरियान का माली नुकसान हुआ था उन्हें भरपाई अदा की गई और आज म्यूनसिपल कमिश्नर के हाथों उन्हें इमदादी चेक दिए गए।
10 जून 2024 को जालान नगर इलाके में वहां से गुजर रहे 1400 मिलीमीटर कुतर की वाटर सप्लाई की लाइन फूट गई थी, जिसकी वजह से करीब की दुकानों में पानी दाखिल हो गया था और दुकान मालिकान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इन प्रॉपर्टी ओनर्स ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नुकसान भरपाई का मुतालबा किया था। इस मुतालबे को पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक एक जायजा कमेटी तश्कील दी गई और मुतासरीन के नुकसान के मुताबिक उन्हें नुकसान भरपाई दी गई, जिनमें 11 मुतासरीन शामिल हैं। म्यूनिसिपल हेड ऑफिस में कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों विशाखा राय को चेक दिया गया। इस मौके पर अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले और संजय कोलते भी मौजूद थे। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मिशन तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के तहत एक अहम कदम उठाया गया, जिसका मकसद कबायली व आदिवासी बरादरी की तरक्की पर मबनी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसके लिए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की जानिब से तलबा से राय दही की अपील की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से महाराष्ट्र हुकूमत के तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र मिशन 2047 मुहिम के तहत तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले से कीमती आरा तलब की गई हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर ने तमाम मुतालिका अफराद से अपील की है कि वो वेबसाइट या QR कोड के ज़रिए 24 जुलाई 2026 तक अपनी राय ज़रूर दर्ज कर दें। ये दस्तावेज़ तरक्की, पायदारी, शमूलियत और बेहतर हुक्मरानी जैसे 4 बुनियादी उसूलों पर मबनी होगा। इसी सिलसिले में वाइस चांसलर ने मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्रुरी की हिदायत दी, जिसके तहत फैकल्टी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय सालुंके को अता की गई। इसी तरह अफसरान और गैर तदरीसी अमले के कोऑर्डिनेटर के तौर पर डॉक्टर गणेश, जबकि तलबा कोऑर्डिनेटर के तौर पर डॉक्टर विलास अंभोरे को मुकर्रर किया गया है। सरकारी तौर पर जारी करदा सर्कुलर में एक सवालनामा भी शामिल किया गया है और तमाम असातिज़ा, मुलाजिमीन और तलबा से अपील की गई है कि वो अपनी राय वेबसाइट या QR कोड के ज़रिए 24 जुलाई तक ज़रूर फराहम करें, ताकि रियासत की तरक्की में उनका कीमती ताउन शामिल हो सके। ज़िला औरंगाबाद में मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर के आइंदा तरक्याती मंसूबों के लिए रास्तों की हदबंदी की जा रही है। शहरियान से अपील की गई है कि वो इस अमल में ताउन करें और किसी भी तामीर से पहले मुताल्लिका महकमे से NOC हासिल कर लें, ताकि मुस्तकबिल में परेशानी से बचा जा सके। वाज़ेह है कि औरंगाबाद मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे कार में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से अहम सड़कों की सीमाबंदी यानी हदबंदी का अमल जारी है, जिसके सबब कुछ शहरियान में उलझन पैदा हुई है। फ़िलहाल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स और दीगर इदारे बिल्डिंग डेवलपमेंट और कंट्रोल लाइन के उसूल के मुताबिक रकबे की हदबंदी कर रहे हैं। हुकूमत की मंजूरी से हर सड़क के दरमियान से इमारत और कंट्रोल लाइन का फासला तय किया गया है। इस हदबंदी का मकसद सिर्फ शहरियान को मुताल्लिका हुदूद से बाखबर करना है। अथॉरिटी का कहना है कि जो तामीरात मुताल्लिका इदारों की इजाज़त के बगैर कंट्रोल लाइन के अंदर की गई हैं, उन्हें गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा, अगरचे फ़िलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुस्तकबिल में तरक्याती मनसूबाबंदी को मुनज़्ज़म बनाने और शहरियान को किसी भी मुमकिना धोखादही या नुकसान से महफूज रखने के लिए NOC और तामीराती इजाज़तनामा हासिल करना लाजिम होगा, यानी कि बिल्डिंग परमिशन ज़रूरी होगा। अथॉरिटी ने अवाम से अपील की है कि वो इस अमल में सरकारी इदारों से ताउन करें। लातूर में छावा तंजीम के ओहदेदार पर हमले के बाद जालना में छावा तंजीम के कारकुनान ने NCP अजीत पवार ग्रुप के दफ्तर को आग लगाने की कोशिश की। इस वाक़े पर पुलिस ने खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लातूर में छावा तंजीम के ओहदेदार विजय कुमार घाटगे पर NCP अजीत पवार ग्रुप के कारकुनों की जानिब से शदीद मारपीट के बाद जालना में छावा तंजीम के कारकुन मुश्तइल हो गए। जालना शहर के मंठा रोड पर वाक़े NCP के राब्ता दफ्तर को नज़र आतिश करने की कोशिश की गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अजीत पवार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। छावा कारकुनान का कहना है कि लातूर वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए वो अब उसके खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, जिसके बाद साबिक MLA अरविंद अन्ना चौहान ने भी इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। काल रात्री लातूरला आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष तटकरे साहेब यांच्या समोर छावा संघटनेच्या माध्यमातून पत्ते फेकण्याचा प्रयत्न झाला आणि निघत असताना
तटकरे साहेबांनी स्वतः अतिशय शांततेनं ते निवेदन स्वीकारलं होतं, पण छावाची जी मंडळी होती ती बाहेर पडत असताना त्यांनी काहीतरी अश्लाघ्य गैरशब्द वापरले आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा राग अनावर झाला आणि त्यांनी त्या ठिकाणी जो काही प्रकार टीव्हीवर घडला तो आपण पाहिलेला आहे. आम्ही त्याचं समर्थन करत नाही, ते व्हायला नको होतं ते झालं. स्वतः तटकरे साहेबांनी याबद्दल सांगितलंय आणि नंतर सूरज चव्हाण साहेब जे आमचे प्रवक्ते युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष त्यांनी या संदर्भात दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे. एवढं सगळं घडत असताना या ठिकाणी छावाची जी काही 2-4 कार्यकर्ते मंडळी होती ती अचानक रात्री 12च्या नंतर या ठिकाणी आली आणि त्यांनी इथं माझा वॉचमन होता गोतेकर म्हणून जळगावचा, त्यांनी पेट्रोल बॉम्ब फेकला. माझा ड्रायव्हर इथंच वरती झोपलेला होता संभाजी गोतेकर, आणि मग माझ्या मुलाला फोन केला, ते आले, संतोष ढेंगळे आले आणि ती माणसं ट्रेस आउट झाली. त्यांचे नाव माहिती आहेत, CCTVत आलेले आहेत. त्यांच्या नावानिशी रात्रीच पोलिसांनी तात्काळ दखल घेतली. मी पोलीस प्रशासनाचे आभार मानेल की प्रशासनाने अतिशय तात्काळ तडकाफडकी याची दखल घेतलेली आहे आणि सकाळी स्वतः DYSP कुलकर्णी साहेब असतील, मोरे साहेब असतील, त्यांचे सर्व सहकारी आणि या ठिकाणी आताही पोलीस बंदोबस्त लावलेला आहे. त्याबद्दल मी पोलीस प्रशासनाचे आभार मानतो. पण गुन्हेगारांना तात्काळ अटक झाली पाहिजे आणि कायद्यानुसार त्यांना योग्य शासन झालं पाहिजे. या ठिकाणी आता सुदैवानं काही घडलं नाही, हा वेगळा भाग, पण पेट्रोल बॉम्ब फेकण्याचा प्रकार हा निश्चितच निंदनीय आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते आम्ही या प्रकाराचा निषेध व्यक्त करतो. गायरान ज़मीनों से नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए दिए गए अहकामात पर स्टे दिया जाए, इस मुतालबे पर VBA की जानिब से एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया को दिया गया। इस वफ्द में शामिल VBA के ओहदेदारान ने इलाकाई इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम के ज़रिए बताया कि हाल ही में ज़िला कलेक्टर ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत ज़िले में मौजूद गायरान ज़मीनों पर रहने वालों को हटाने के अहकामात जारी किए गए हैं, जिस पर 27 जुलाई से अमल शुरू किया जाएगा। इन लोगों ने इलाकाई इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ज़िला कलेक्टर की जानिब से शुरू की जा रही इस कार्रवाई को फौरी रुकवाया जाए। सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत, त्यांच्या आदेशाचा न्यायालयाचा दाखला देत त्यांनी अतिक्रमणे काढण्यासाठी दिशानिर्देश दिले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आदेश काढला. परंतु ही पार्श्वभूमी बघितली आपण की जे अतिक्रमण धारक आहे, गायरान धारक आहे, ते सन 1990 पासून 98 पर्यंत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यांनी दंड भरलेला आहे आणि काही प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पावसाचे दिवस आहेत आणि अचानकपणे कारवाई करून त्यांचे घरं नेस्तनाबूत करण्याचं काम हे पालकमंत्री संजय शिरसाट करत आहेत. शहरामध्ये ज्यावेळेस अतिक्रमण झालं त्यावेळेस यांनीच ब्रश सुद्धा काढलेला नाही आणि गंगापूरचे आमदार प्रशांत बम यांनी महानगरपालिकेचा मुद्दा उचलला आणि पालकमंत्री संजय शिरसाट हे शहराचे आमदार असताना ग्रामीण भागाच्या जिल्ह्याच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा घेत आहे. म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर, हे सत्तेतील अधिकारी करत आहेत. तर वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका कायम राहिलेली आहे की ज्यांनी अतिक्रमण केले आहे त्यांना ती जागा त्यांच्या नावावर करण्यात यावी. यासाठी वंचितचे सर्व बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मागच्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनमध्ये मुंबईमध्ये मोर्चा काढला होता आणि त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली होती. परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने यांनी कारवाई केलेली आहे. जनतेला भ्रमित करून त्यांचं मतदान मिळवण्यासाठी हा प्रकार चालू आहे. कारण BJP आणि संजय शिरसाट शिंदे गट हे सगळे एकाच नाण्याचे दोन बाजू आहेत. लाडक्या बहिणीचा मुद्दा, त्यानंतर त्यांना 2100 रुपये देण्याचा मुद्दा असेल, प्रत्येक वेळी निवडणुकीच्या तोंडावर कुठला ना कुठला मुद्दा, जातीवादी मुद्दा काढण्याचा यांचा प्रकार आहे. खऱ्या अर्थाने विकास कामे दूर ठेवलेली आहेत आणि नागरिकांचं मत मिळवण्यासाठी धार्मिक राजकारण आणि सत्तेसाठी अशा पद्धतीने ते कृत्य करतायत. वंचित बहुजन आघाडी आज या कार्यालयामार्फत मागणी करते की कुठलीही कारवाई करू नये आणि जर असं होत असेल तर
श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी खूप मोठं आंदोलन उभा करेल आणि आम्ही आज या निवेदनाच्या माध्यमातून इशारा देतोय की 8 दिवसाचा आमचा अल्टिमेटम असेल। आम्ही सर्व गायरानधारक अतिक्रमणधारक यांना सोबत घेऊन मोठे जन आंदोलन या ठिकाणी करणार आहोत। जिले के गारखेड़ा इलाके के काबरा नगर में ड्रेनेज लाइन के फटने के बाइस गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा है, जिसके सबब मकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक हो गया है। इस ज़िमन में शहरियान ने मुतल्लिका महकमे से तवज्जो की गुहार लगाई। गारखेड़ा के काबरा नगर इलाके में कई दिनों से ड्रेनेज लाइन फटी हुई है, जिसके नतीजे में घरों के सामने गंदा पानी जमा होकर तालाब जैसी सूरत इख्तियार कर चुका है। गली नंबर 1 से 3 तक ड्रेनेज चैम्बर्स बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आलूदा पानी सड़कों पर बहकर गलियों में जमा हो रहा है। शहरियान को अपने घरों तक पहुंचने के लिए इसी गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों और बड़ों में पेट की बीमारियों और दीगर वबाई अमराज में इजाफा होने लगा है। बदबूदार माहौल ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया है। आने जाने वाले अफराद को नाक ढाँप कर गुजरना पड़ रहा है। मकामी शहरियान का कहना है कि वो कई बार म्यूनसिपल वार्ड ऑफिस में अफसरान को दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ मुआयना ही किया गया है, कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। शहरियान ने इंतबाह दिया है कि अगर फौरी तौर पर इस मसले को हल न किया गया तो वो म्यूनसिपल दफ्तर के सामने एहतजाजी मार्च करेंगे। पुढच्या अतिक्रमणामुळे काय झालेलं आहे की काम हे पेंडिंग पडलेले आहे आणि आम्हाला जसं साहेब होतं काय आम्ही काढून 1-1.5 महिना झाला आहे। बघा ही परिस्थिती जी ही सगळे साहेब लोक स्वतः येऊन पाहून गेलेले आहेत। असं नाही का अतिक्रमण हटाओ, ये हटाओ, वो करो, वो अतिक्रमण का अधिकारी लोग हैं, उनको अधिकार है ना अतिक्रमण खुद आके हटाना ना उन्होंने। तो यहाँ की जनता को बोल रहे तुम बोलो, तुम उनको रिक्वेस्ट करो, ये करो। हम उनको बोल रहे अतिक्रमण साहब का नहीं भी गए थे, हम जादव साहब का नहीं, उन्होंने भी बोले वहाँ से कॉल किए कि भाई अतिक्रमण की वजह से काम रुके हुआ है, तो जल्द से जल्द ये अतिक्रमण हटा के काम चालू करो। ये हमारी ये मसला है, ये मसला हमारा सॉल्व हो जाना। काबरा गारखेड़ा परिसर काबरा नगर या परिसरातले गली नंबर 1, 2, 3 या तिन्ही गल्ल्यातले चंबर वाहत आहे आणि आम्ही झाले 3 महिन्यापासून सारखी त्यांना तक्रार देतोय आणि येतात ते सर्व अधिकारी येतात, पूर्ण गल्ली बघतात आणि गल्लीमध्ये बघतात 2 दिवसाचा 3 दिवसाचा वायदा देतात आणि आम्ही आज पूर्ण करू, उद्या पूर्ण करू आणि म्हणता अतिक्रमण हटवा। आता आमच्या पूर्ण अर्धा गल्लीतलं अतिक्रमण हटलेलं आहे। 2-3 गल्ल्याचा प्रॉब्लेम आहे, पण जेवढं झालेलं आहे तेवढं तरी पूर्ण करायला पाहिजे की नाही। जेवढं झालं तेवढं पूर्ण झालं तर बाकीचा त्रास कमी होईल। आणि माझ्या घरापुढे एवढा घाण साचलेली आहे, मला जायला सुद्धा जागा नाही आणि घरामध्ये पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी घरामध्ये साचलेलं आहे। स्वयंपाक तिथंच करायचा, सगळं तिथंच आहे। माझा एकटीचा प्रॉब्लेम नाही, पूर्ण काबरानगरच्या 2-3 नंबरच्या गल्लीमध्ये पूर्ण गल्ल्याचा तोच प्रॉब्लेम आहे आणि अधिकारी येतात, पूर्ण बघतात, 2-3 आलं, 1 दिवसाचं होईल, 2 दिवसाचं होईल, पूर्ण सोडून देतात, चालले जातात। या समस्याचं जर निराकरण झालं नाही तर तुमचं पुढचं सगळं रहिवाशाचं काय पाऊल राहणार? आम्ही उपोषणला बसू, मोर्चा काढू, तिथे सर्व गल्लीतल्या बाहेर जाऊ, तिथे बसू आम्ही। जोपर्यंत आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत आम्ही तिथेच बसून राहणार। आणि बारीक बारीक लेकर बाळाचं सगळं बंद झालेलं आहे, खेळाचं बिल, शाळेत जायचं बी, सगळे लोक बेमार पडलेले आहे। ते काही सर अंतच लागत नाही तिथे। आम्ही काय करायचं, काय खायचं, काय दवाखान्यात भरायचं, गरीब लोक आहे। तुम्ही मोठे लोक घरात बसत्या, फोटो काढून नेत्या, चालल्या जात्या आणि मग दुसरा आला की तो फोटो काढून नेतो, चालल्या जातो। आम्ही तरी काय करायचं, आम्हाला काही इथे समजतं का नाही? तर मामा सांगा तुमच्या घरात गड्डे करा संडासचं। हे 3 महिन्यापासून परेशानी आहे आम्हाला। हा कोणता परिसर आहे? काबरा नगर। काबरा नगर परिसर। काय समस्या नेमकी तुम्हाला? चंबर लाईन काय झालेलं आहे? याला ड्रेनेज पूर्ण उडलू लागले और आम्हाला राहायला, खायला, प्यायला काहीच जागा नाही राहिली। पुरा दारासमोर आम्हाला घाण येऊ लागली, घरासमोर घाण येऊ लागली, आमचे दारासमोर येऊ लागली घाण आमचे। ऐसे बोलो हमको है ना बहुत परेशानी हो रही है, इसका न्याय है क्या जल्द से जल्द लगाना, और नहीं तो फिर हमको क्या करना, हम कर सकते हैं। फिर हमको बोलना नहीं, हम मोर्चे लेके आएंगे या रास्ते बंद करा देंगे। हमारा जल्द से जल्द ड्रेनेज लाइन की पाइप साफ कर दे देने को। लहान बाळ आहे आमच्या घरामध्ये, बिमार पडले 3 वेळेस ते 3 महिने झाले तसं आमच्या बी दारासमोरून वाहू लागली नदी तशी चंबरची ड्रेनेज लाईन। काय त्रास झालेला? पिण्याच्या पाण्यामध्ये सुद्धा वास येतोय ड्रेनेजचा। तुम्ही महानगरपालिकेत तक्रार वगैरे दिलेली आहे का? हो दिलेली, काय म्हणणं दिली, पण काही नाही, ते फक्त येऊन बघतात आणि चालले जातात। आज 2-3 महिन्यापासून एवढ्या जागेतच काम करू लागले, ते पुढे काही येणच नाही तिकडे। बघा तुम्ही फोटो काढून नेते। क्या तकलीफ है? कितने दिनों से
हमको 3 महीने से तकलीफ है ना, चंबर के पानी के दरवाजे के सामने से जा रहे, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फिर वो क्या करना, तुम दवा खाने में थोड़े हमको पैसे देंगे, न तो फिर ऐसा करो, नहीं काम कर रहे हो तो हम दवा खाने में बच्चों को एडमिट कर देते, उसकी पूरी दवा खाने की भरपाई तुम कर दो, नहीं ऐसा करते तो फिर हमारी वही करेंगे, हम एक एक जाके एडमिट हो जाएंगे, वो दवा खाने का पूरा पैसा तुम नहीं देना। ये 3 महीने से परेशानी निकाल रहे, हमारे घरों में तक पानी चल जा रहा हो, घरों में वो पानी पीने को वही पानी आ रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे, हम पड़ रहे, कोई आके देख रहा नहीं। 3 बार कहीं 10 बार हम वहाँ जाके कंप्लेंट कर करके आ गए, कोई सुन रहा नहीं। घर में लंबे लंबे आला निकल जा रहे, हमारे घर के सामने से अंदर घरों में आला चल जा रहे, फिर क्या करना। हरसूल इलाके में मौजूद सांगले गली के अतराफ ड्रेनेज के पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके सबब इलाके के साकिनान को सेहत का ख़तरा लाहक हो गया है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि इलाके में एक खानगी स्कूल के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी स्कूल मौजूद है, जहां रोज़ाना हज़ारों तलबा इल्म हासिल करने आते हैं, मगर इलाके में ड्रेनेज के नाक़िस इंतज़ामात के सबब गलीज़ पानी रास्ते पर जमा हो रहा है, जिसने झील जैसी शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे न सिर्फ साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है बल्कि तलबा के भी मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने का ख़दशा है। लिहाजा मकामी साकिनान म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा करने लगे हैं कि इस मसले को फ़ौरी हल किया जाए और इलाके में ड्रेनेज के इंतज़ामात फ़ौरी दुरुस्त करवाए जाएँ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की काविशें रंग लाईं और स्कूली तलबा ने स्कॉलरशिप में नुमाया कामयाबी हासिल की। साल रवां भी इम्तहानात की तैयारी के लिए खुसूसी प्रोग्राम चलाया जाएगा, ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा है। पिछले साल इस मंसूबे के तहत 5 नुकाती प्रोग्राम मुतारिफ़ किया गया। इस ज़िमन में जमात पंजुम से जमात हश्तुम के तलबा के लिए स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी करने के लिए विदर्भ के मारूफ रिहोरा पैटर्न के मुंतज़िम ठाकरे और उर्दू मीडियम के तलबा के लिए रेहान शेख की रहनुमाई में सभी स्कूलों के असातिज़ा के लिए कैंप मुनक़िद किए गए। असातिज़ा ने स्कूलों में 5वीं और 8वीं जमात के तलबा की एक्स्ट्रा क्लासेस लीं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सतह पर तलबा के लिए 3 जांच इम्तहानात मुनक़िद किए गए, जिसकी वजह से तलबा की अच्छी तैयारी मुमकिन हुई। इस साल भी 557 तलबा ने स्कॉलरशिप इम्तिहान में शिरकत की, जिसमें से 257 तलबा कामयाब हुए और 107 तलबा स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिए गए हैं। जमात हश्तुम के जुमला 505 तलबा ने स्कॉलरशिप इम्तिहान दिया, जिसमें से 172 तलबा कामयाब हुए और 87 तलबा स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिए गए। पिछले साल सिर्फ 57 तलबा ही कामयाब हुए थे और सिर्फ 6 तलबा स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिए गए थे, जबकि इस साल 40% तलबा कामयाब हुए और 18 तलबा स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिए गए। इन सभी कामयाब तलबा के स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन की कारकर्दगी की म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर और तालीमी शोबे के हेड अंकुश पांडरे ने सताइश की। म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल मराठी किराड़पुरा, म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नारेगांव व अशोक नगर, ब्रिजवाड़ी, सिल्क मिल कॉलोनी, चेलीपुरा, इन स्कूलों के तलबा स्कॉलरशिप में कामयाब हुए। लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक जमात पंजुम ता हश्तुम की क्लासेस 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। सत्यशोधक समाज प्रतिष्ठान औरंगाबाद की जानिब से संविधान सम्मान रैली निकाली गई। रैली के आगाज़ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। रैली में शामिल शहरियान दस्तूर की इक़दार, आज़ादी, मसावात, भाईचारा और इंसाफ के बैनर उठाए हुए थे। इस रैली का इफ्तिताह कामरेड किशोर ढमाले के हाथों किया गया। प्रोग्राम की सदारत सत्यशोधक समाज के सदर ई हरदास ने की। इंजीनियर बी के आदमा ने, प्रोफेसर भारत शिरसाठ, अनंत भंवरे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शरीक थे। प्रोफेसर भारत शिरसाठ ने तमहीद बांधकर निज़ामत के फ़राइज़ अदा किए। म्यूनसिपल तलबा हर सनीचर को 2 घंटे म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के सरकारी बंगले जलश्री पर गुजारने लगे हैं। ये खुसूसी सरगर्मी स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। नाज़रीन, म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गुज़िश्ता 2 बरसों से स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम
चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर शनिचर को म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा को एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सरकारी बंगले जलश्री की सैर करवाई जाने लगी है। गुज़िश्ता शनिचर को ब्रिजवाड़ी स्कूल के तलबा ने कमिश्नर के बंगले को विज़िट दी और वहां मौजूद ग्राउंड पर कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, रस्सी खींच और मुख्तलिफ खेल खेले। इसके बाद इन तलबा ने वहां मौजूद निज़ाम दौर हुकूमत में तामीर करदा पानी की टांकी का बारीकी से मुशाहिदा किया। ये पानी की टांकी अंडरग्राउंड है, जिसमें पानी के ज़ख़ीरे की मौजूदगी मालूम करने के लिए एक खुसूसी आला लगाया गया है। इन तलबा ने इस आले का भी बगौर मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्हें पानी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया, जिससे तलबा बहुत मुतासिर हुए और इस बात का अज़्म किया कि अपने घरों पर पानी को यूं ही ज़ाय नहीं होने देंगे, बल्कि किफ़ायत शारी से उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने पड़ोसियों को भी पानी की अहमियत से वाकिफ़ करवाएंगे। बाद-ए-अज़ां इन तलबा ने म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के ख़यालात जानने के बाद उनकी ज़िंदगी से वो बहुत मुतासिर हुए और इस बात का अज़्म किया कि मुस्तक़बिल में वो भी UPSC इम्तिहान में शिरकत करेंगे और ख़ूब मेहनत करके इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके वो भी IAS और IPS ऑफ़िसर बनेंगे। ब्रिजवाड़ी स्कूल की तालिबा मुस्कान पठान ने एक नज़्म म्यूनसिपल कमिश्नर को सुनाई, जिसकी आखिरी 3 लाइनों में उस तालिबा ने अपने अज़्म का इजहार किया। साथ ही उसने म्यूनसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया कि उनकी काविशों की वजह से ये स्कूल बंद नहीं हुआ और वो लोग तालीम हासिल कर पा रहे हैं। उसने इस बात का भी अज़्म किया कि वो अब खूब पढ़ेगी और एक आला ऑफ़िसर का ओहदा हासिल करेंगी, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे शाल और गुलदस्ता देकर उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर शोबे तालीम के HOD व डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे, एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश लांडगे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, स्कूल की सदर मौलमा तलोत्तमा मापारे, केशव कामले, दिनेश पिचोरे, अंबादास करोड़े और ईशा वाघमारे भी मौजूद थीं। घाटी दवाखाने के अहाते में अचानक कहीं से एक सांप घुस आया, जिसके सबब मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में खौफ तारी हो गया। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो घाटी दवाखाने की हैं, जहां एक बड़ा सा सांप खिड़कियों के ज़रिए वार्ड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद अफराद पर खौफ तारी हो गया और वो उसे धर दबोचने के लिए तरकीबें करने लगे, मगर किसी में हिम्मत न हुई कि वो उसके करीब जाते। ताल्लुका बदनापुर के सायगांव, डोंगरगांव और कुम्भारी देहातों में बड़े पैमाने पर हो रही गैरकानूनी रेत निकासी पर तहसील अमले ने छापा मारकर 12 बरास रेत जब्त कर ली। वाज़ेह है कि बदनापुर ताल्लुक़े के सायगांव, डोंगरगांव और कुम्भारी में रेत की गैरकानूनी कानकिनी ज़ोरों पर है। मकामी तहसीलदार, मंडल ऑफिसर और गाँव के महसूल ऑफिसर इस सरगर्मी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। डोंगर गांव में भी रेत का बड़ा ज़ख़ीरा किया गया था, जिस पर शिकायत के बाद महसूल महकमे की जानिब से कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद 12 बरास रेत का पंचनामा करके उसे जब्त भी किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ग्राम महसूल ऑफिसर कैलाश सुंदरड़े, मंडल ऑफिसर संजय धिगे, पुलिस पटेल सुभाष भिकाजी, संजय ओगले पटेल, सतीश नाना साहब इंगड़े, विट्ठल शिंदे और दीगर अफराद मौजूद थे। शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पर इतवार की शब 2 4 व्हीलर सवारों के दरमियान खूब हंगामा हुआ। उनका इल्ज़ाम था कि उन्होंने दूसरी गाड़ी को चकमा क्यों दिया और फिर अचानक एक गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सफ़ेद गाड़ी में पुलिस की टोपी और डंडा रखा हुआ था, जिसकी वजह से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस शख्स ने दूसरी गाड़ी के शीशे फोड़े वो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर होगा। राहगीरों का कहना है कि शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पर मौजूद फ्लाईओवर पर काले रंग की एक कार और सफ़ेद रंग की एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे के पीछे तेज़ी से दौड़ रही थी कि अचानक सफ़ेद रंग की गाड़ी आगे आई और उसने काली गाड़ी का रास्ता रोक लिया और फिर अपनी कार से एक डंडा निकालकर काले रंग की गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। इत्तला मिलते ही उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अतुल यरमे ने एक टो मोबाइल वैन वहां भिजवाई। इस तरह जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का अमला भी वहां पहुंच गया, मगर मुलजिम वहां से फरार हो गया। इस वाक़े के सबब कई घंटों तक वहां ट्रैफिक जाम रहा। फिर पुलिस ने दोनों गाड़ियां वहां से हटवाईं, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हुआ। ज़िला जालना के चंदनझीरा इलाके में
जालना औरंगाबाद रोड पर वाक़ इंद्रायणी होटल से करीब सड़क पार करते वक्त एक राहगीर को टू व्हीलर सवार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की हालत शदीद नाजुक बताई जा रही है। समाजी कारकुन अक्षय मौर्य ने इल्ज़ाम लगाया है कि बार बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त देने के बावजूद इस सड़क पर न रिफ्लेक्टर्स लाइट्स लगाई गई और न ही स्पीड ब्रेकर, जिसके सबब यहां अक्सर हादसा पेश आते हैं। हादसे के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर जालना के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम एक की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे मजीद इलाज के लिए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल को भिजवाया गया। आज दिनांक 20/7/2025 रोजी 8:30 ते 9च्या दरम्यान चंदनजिरा परिसरात इंद्रायणी हॉटेल समोर एक मोटरसायकल आणि 5 चारी इसम यांच्यामध्ये ऍक्सिडेंट झाल्यामुळे 2 इसमांना आपल्या अपघात विभाग जिल्हा रुग्णालय जालना इथे ऍडमिट केलेले आहे। तर दोघांना तपासणी केलेली असताना एक रुग्ण थोडा अस्तव्यस्त आहे। तर सदरील रुग्णांना परिसरातील स्थानिक समाजसेवी युवकांनी आपल्या इथे भरती केलेली आहे। तर 2 रुग्णांपैकी एकाचे नाव कळलेले आहे, तर त्याचं नाव अनिल गोळेकर असून दुसऱ्या इसमाचे नाव MIDCचे वारंवार कर्मचारी किंवा तिथले स्थानिकचे लोक वारंवार ते रस्त्यावरती जात असतात आणि भरपूर ग्रस्तीचा विषय आहे तिथला। त्या ठिकाणी अनिल गोळेकर आणि सुभाष भिसे या 2 इसमाचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। या ठिकाणी तिथं आपण वारंवार प्रशासनाला विनंती करत आहे की बाबा ब्रेकर बसवा किंवा तिथं काहीतरी रिफ्लेक्टर लावा। हे प्रशासन म्हणजे आतापर्यंत झोपलेलं आहे प्रशासन, त्यांनी काही तिथं रिफ्लेक्टर लावले नाही, ब्रेकर बसवले नाही, यामुळे वारंवार ॲक्सिडेंट होत आहे तिथं। आणि यामुळं आज जो ॲक्सिडेंट झालेला आहे अनिल गोळेकर आणि सुभाष भिसे यांचा, यामुळे आज तरी त्यांचा मेजर ॲक्सिडेंट झालेला आहे, उद्या एखाद्याचा बळी जाऊ शकतो। या ठिकाणी ब्रेकर बसवायचं प्रशासनाला आपण वारंवार सांगत आहे, तरी प्रशासन बसवत नाही, हे प्रशासनाची नाचक्की आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए चलाई जा रही स्कीमात का नेशनल विमेन कमीशन की चेयरमैन विजय राहटकर ने लिया जायजा और मुताल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार। औरंगाबाद प्रदेश डेवलपमेंट स्टेचुरी बोर्ड के तहत की जा रही रास्तों की मार्किंग के लिए शहरियान दे ताउन। धोखाधड़ी और नुकसान से बचने के लिए मुताल्लिका इंतजामिया से NOC लेकर ही तामीरी काम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में चलाए जा रहे स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के सामने आने लगे मस्बत नताइज। म्यूनिसिपल तलबा ने हासिल की स्कॉलरशिप इम्तिहानात में शानदार कामयाबी। साले रवां भी स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के लिए चलाया जाएगा खुसूसी प्रोग्राम। और हर शनिचर को जलशीरी पर घूमने का म्यूनिसिपल तलबा को फराहम किया जा रहा है मौका। म्यूनिसिपल तलबा में UPSC इम्तिहान से दिलचस्पी पैदा करने में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को मिली बड़ी कामयाबी। स्टडी पर खुसूसी तवज्जो देकर आला ऑफिसर बनने का तलबा बुनने लगे हैं ख्वाब। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।